Welcome dear students to Coachify Live. I am Dr. Soumitra Azad, your VARC mentor, and I welcome you to this session on good reads for a great career. I'd like to begin by thanking each one of you for your patient and regular viewing. I'm very happy to announce that I, as a mentor, and we as an institution have received applause and have received a great lot of encouragement. I would like to thank each one of you for the simple reason that we are because you are. We exist because of you. So it feels very, satisfying to be appreciated by the student community. For we are here to serve you and to help you become better. Coming to the point, good reads for a great career. In the past three sessions, we began by talking about the importance of reading a newspaper, how to go about reading it, why to read it, what all to read, how much to read, how will it be beneficial, followed by short reads such as important essays, the kind of English that you get in your exams, short stories, the kind of the manner in which these short stories help you. If you want to get a hang of what I'm talking about, please go to our channel, Coachify Live, subscribe it and do watch the series, do watch the episode 1, 2 and 3. Here I am, this is the fourth part with good reads for a great career, and today we are going to talk about some plays in English which are not the typical run-of-the-mill plays. The moment I say a play, the moment I say use the word drama, हमारे जहन में एक तस्वीर ऐसी उभरती है जो मोर लाइक टीवी सीरियल्स होती है या highly engaging and melodramatic. No, this is not what our aim is. Our aim is very clear. Our aim is to enhance English, our ability, all the four aspects of English language: read, write, speak and comprehend. चारों पार्ट्स, बोलना, लिखना, समझना और पढ़ पाना, ये चारों की चारों चीज़ों पर आप लोगों का बेहतर अधिकार हो. You get a better command of English as a language for the simple purpose of cracking your exams and performing well. All right. हमने पिछली सीरीज में, पिछले जो एपिसोड्स थे उनमें बात की थी कि we are tested for British English, all right, and so we are going to be reading the world literature. पूरी दुनिया का हम लोग क्लासिक्स को पढ़ेंगे, खासकर इंग्लिश क्लासिक्स को पढ़ेंगे. Number one, to get a better hold of English language, that's number one. And number two, to understand the socio-political and economic scenario. किस तरीके का समाज रहा है और हम ऐसे क्यों. ये सारी चीज़ें आपको जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आप लोगों के आएंगे, बिकॉज कॉम्प्रिहेंशन पैसेज किसी भी टॉपिक पर आ सकता है. वो फिलॉसफी पे हो सकता है, वो इकोनॉमी पे हो सकता है, वो रिलीजन पे हो सकता है, साइकोलॉजी पे हो सकता है, एजुकेशन पे हो सकता है, पॉलिटिक्स पे हो सकता है, सोशल इश्यूज़ पे हो सकता है, एनवायरमेंटल इश्यूज़ पे हो सकता है, दुनिया के किसी भी विषय पर, एनी डैम टॉपिक इन दिस वर्ल्ड. ऑलराइट. But you do get, there have been instances when you've got passages directly from some of the classic authors, right? तो आज हम लोग थोड़ा सा ऐसे विषय के बारे में बात करते हैं जो कि जनरली एनकरेज नहीं किया जाता, या फॉर वेरियस रीजंस नॉट मैनी मेंटोर्स सजेस्ट दिस, which is plays. Students, if you go back to the channel and watch the second episode of this series, Good Reads for a Great Career, you'll see कि मैंने essays को आप लोगों की करंट राइटिंग से किस तरीके से एग्जाम से जोड़ा था. ठीक उसी तरह से एंड शॉर्ट स्टोरीज को भी थर्ड एपिसोड में. तो आज हम प्लेज के बारे में बात करते हैं. नाउ व्हाई डू यू हैव टू रीड दिस? नंबर वन, फॉर द सिंपल रीज़न अंग्रेजी बेहतर होगी, आपको लिखना पढ़ना बोलने की समझ आएगी, वोकैबुलरी एनहांस होगी, राइटिंग स्टाइल होगा. नंबर टू, इसमें से एक्सट्रैक्ट्स आ सकते हैं. नंबर थ्री, कि आपको उस समय के पूरे समाज के बारे में एक बेहतर आइडिया देगा. इट्स गोइंग टू introduce you to the prevailing conditions, the then prevailing conditions in the society, which will give you an insight into why are we the way we are. All right.
Now, some of the plays. So, there's a very famous playwright, Oscar Wilde. Okay. And one of his best plays is The Importance of Being Earnest. बहुत ही खूबसूरत प्ले है, छोटा सा प्ले है, 100-125 पेजेस का मुश्किल से प्ले है, वेरी इजीली अवेलेबल, वेदर यू बाय इट ऑनलाइन और ऑफलाइन, किसी भी ढंग के बुक स्टोर में जाएंगे जो अंग्रेज़ी की किताबें रखते हैं, आपके शहर में मिल जाएगा। यदि आप रिमोट एरिया में हैं, यदि यू डू नॉट हैव एक्सेस टू अ बुक स्टोर क्लोज बाय, क्लोज टू योर होम, इफ़ यू लिव इन अ area where there aren't very many bookshops, online is the best option. The world is open to you. You'll easily get it on Amazon or Flipkart. The Importance of Being Earnest, a beautiful play. हंसाता भी है, रुलाता भी है, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ज़िंदगी में ये वाक़या हो सकता है कि आपके आसपास वालों में किसी न किसी के साथ पेश आया हो. So it's a beautiful read. What is it about? You please wait. Procure it, buy it and then read it. I'm not going to spill the beans for you. मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसका प्लॉट नहीं बताऊंगा मैं. तो ऑस्कर वाइल्ड का द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट से आप शुरू कर सकते हैं. बहुत ही खूबसूरत लिखनी है, बहुत अच्छा नाटक है. इसके अलावा अगर आप लोगों ने आर्थर मिलर का नाम सुना है, आर्थर मिलर, ओके, आर्थर मिलर is one of the most, I still say is because he is still very popular. He's no more, he passed away quite a few years back. But आर्थर मिलर जो हैं, उन्होंने अमेरिकी समाज में अमेरिका की जो उस ज़माने की सोच थी, he was active in the years 1940s 50s में 20-30 साल आर्थर मिलर एक्टिव रहे और इन्होंने काफ़ी प्लेज लिखे. लेकिन इनके जो दो सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्लेज हैं, वो पहला है द डेथ of a salesman, पहला, और दूसरा है all my sons. Okay, all my sons. Please forgive my handwriting. Please grant that I'm a teacher, not an artist, so bear with the poor handwriting. At times I myself cannot understand. मैं खुद नहीं समझ पाता मैंने क्या लिखा है, अंदाजे में काम चलाता हूँ. But so coming back to the point, Arthur Miller's The Death of a Salesman and All My Sons. These are, to begin with, these two plays, short plays, 100 पेज 70 पेज. आप यदि आर्थर मिलर का डेथ ऑफ अ सेल्समैन पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप कोई नाटक पढ़ रहे हैं. ये असलियत के इतना करीब आपको ले जाता है. इट holds your hand and makes you walk through this journey called life. जीवन में आपको ऐसा लगेगा कि ये कितनी सामान्य सी चीज़ है जो शायद आपके आसपास खुद हो रही है, हो सकता है कि आपके अपने परिवारों में हो रही है, आपके जानने वालों में हो रही है. ये जहाँ तक मेरी याददाश्त जाती है, दिस वाज आई थिंक 1954-53 समटाइम अराउंड दैट आर्थर मिलर का ये प्ले आया, द डेथ ऑफ अ सेल्समैन. ये आधिकारिक रूप से दुनिया के सबसे ज़्यादा भाषाओं में अनुवाद होने वाले नाटकों में से एक है. इट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू मैक्सिमम नंबर ऑफ लैंग्वेजेस पॉसिबल. हिंदी में भी इसका रूपांतरण हुआ. सेल्समैन रामलाल की मौत के नाम से इसके हज़ारों शोज़ हुए. एक बड़े मशहूर टीवी एक्टर हैं सतीश कौशिक, अगर आप लोग जानते हैं तो. स्टार्टेड हिज करियर एज ए कैरेक्टर आर्टिस्ट एंड वेंट ऑन टू बिकम अ डायरेक्टर ऑल्सो. सो सतीश कौशिक एक्टेड एज सेल्समैन रामलाल. जब किसी ज़माने में बहुत पहले इसके बहुत सारे शोज़ बड़े रेगुलर होते थे बॉम्बे वगैरह में, आज भी जहाँ थिएटर एक्टिव है. सो इट्स ए ब्यूटिफुल प्ले, इट्स ए ब्यूटिफुल प्ले. द नेम सजेस्ट अ लॉट, नॉट एवरीथिंग बट अ लॉट. इसको पढ़िए. इसका जो सबसे खूबसूरत और दिल को छू जाने वाला डायलॉग है वो पति पत्नी के बीच का संवाद है. एक उम्र दराज पत्नी है जो अपने ढलती उम्र के पति से, हु इज़ अ सेल्समैन, हु इज़ ऑल्सो द प्रोटैगनिस्ट, से कहती है दैट यू लुक अनवेल, यू मस्ट स्टे होम. एंड द मैन रिप्लाइज दैट अ सेल्समैन रन्स ऑन टू थिंग्स, अ स्माइल एंड अ शू शाइन. सो इसके बहुत गहरे मायने हैं. स्माइल और शू शाइन दो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं. शू शाइन जूते में है, स्माइल चेहरे पे है.
किस तरीके का समाज है, किस तरीके के बोझ हैं, किस तरीके के बर्डन्स एंड प्रेशर्स हैं, आप इसको पढ़ेंगे. इट्स ए ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट ऑफ ह्यूमन हार्ट. ठीक है, ज़रूर पढ़िएगा. मैं इसको बहुत स्ट्रांगली एडवाइस करता हूँ, सबको रेकमेंड करता हूँ. सिमिलरली इट्स ऑल माई सन्स, जो एक सो कॉल्ड अमेरिकन ड्रीम है, जो हाईली कैपिटलिस्टिक एंड मनी ओरिएंटेड अमेरिकन अप्रोच है, उसके ऊपर एक बहुत अच्छा कमेंट है. शुरुआत यहाँ से होती है, यहाँ तक पहुँचता है. वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, हाईली कॉन्टेम्पररी. आप आज भी उन सारी समस्याओं से दो चार होते हैं या किसी को होते हुए देखते हैं. यू कैन रिलेट विद ऑल दोज थिंग्स. दे आर ब्यूटिफुल पीसेज ऑफ राइटिंग. अमेरिकन सोसाइटी की आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग देंगे. वाई इज अमेरिका द वे इट इज, ये आप लोग पढ़ सकते हैं. टू बिगिन विद, ऑस्कर वाइल्ड का द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट है. द डेथ ऑफ अ सेल्समैन, ऑल माई सन्स है. these are some of the most beautiful plays. Now you see, the good thing about these is that all these three plays is that they are, like I said, 180 पेज 90 पेज टाइप हैं. आसान भाषा है, समाज को समझने में मदद करता है और ओवरऑल आप लोगों को बड़ी सहायता करेगा. So to begin with, these are some of the plays that you could read. All right. Other than this, when we talk about Indian authors, I would suggest R.K. Narayanan. R.K. Narayanan happens to be the elder brother of the most famous iconic cartoonist R.K. Lakshman. टाइम्स ऑफ इंडिया में R.K. लक्ष्मण का जो कॉमन मैन स्पीक्स वाला जो कॉलम, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, आप यंगस्टर्स हैं, यंगर जनरेशन है, तो आप लोग इंटरनेट पर जाकर उसको सर्च कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, आई हर्ड इट फ्रॉम माई सीनियर्स, माई एल्डर्स, एंड बैक इन द डेज फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव, बट इट इज़ अ फैक्ट. एक ज़माना था जब टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा सर्कुलेशन इस वजह से था कि उसके फ्रंट पेज पे लक्ष्मण का कार्टून छपा करता था. एंड दे आर इंडीड दैट ग्रेट. आप पढ़िएगा, आप देखिएगा वो कार्टून्स, बहुत बहुत शानदार हैं, सामयिक हैं. सो R.K. नारायणन इज ए राइटर फ्रॉम द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया. इनकी बहुत फेमस किताब है द गाइड. इफ़ यू हर्ड ऑफ इट, देयर वाज अ फिल्म मेड ऑन इट बाय मिस्टर देव आनंद. द नेम ऑफ द नॉवल इज़ द गाइड. ये एक छोटा सा नोवेला है, छोटा सा उपन्यास है, जैसा कि मैंने बताया. और R.K. नारायणन का एक शॉर्ट प्ले है, एंड द नेम इज मिस्टर संपत. ओरिजिनली मिस्टर संपत एक शॉर्ट स्टोरी थी, नोवेला था. इट वॉज लेटर कन्वर्टेड इनटू अ प्ले, एंड देयर वाज अ फिल्म ऑल्सो मेड ऑन इट समवेयर इन द 1950s, स्टारिंग उस जमाने के सुपरस्टार मोतीलाल. It's a beautiful film, black and white film. You may not have the patience to watch it. I have. I'm a primitive man. So, but you could, like I said, to begin with, you could start by reading The Guide and Mr. Sampath by R.K. Narayanan. ठीक है, ये बहुत आसानी से उपलब्ध है पुस्तकें, सस्ती हैं, बहुत बहुत सुंदर हैं, पढ़ने में बहुत अच्छी लगेंगी आप लोगों को पढ़कर. आप लोगों को ऐसा लगेगा कि आप अपने आसपास ही कोई घटना होती हुई देख रहे हैं. इट्स ऑलमोस्ट गोइंग टू बी अ लाइव टेलीकास्ट. ओके, टू योर सेंसेस इट विल अपील. सो यू नो, मैं बहुत ज़्यादा आपको कोई ऐसी चीज़ें सजेस्ट नहीं करूँगा जो बहुत हाई लेवल की हैं, या जो जिनको पढ़ के आप यू आर नॉट एबल टू फाइंड योर फुटिंग. ऐसा कुछ हम लोग नहीं करने वाले हैं. तो हम लोग आज प्लेज पर बात करने के लिए आए हैं, और मैंने आप लोगों को कुछ, आई हैव सजेस्टेड ए फ्यू प्लेज टू यू. I repeat, these are very easy to understand and easily available, cheaply available. They are not very costly. In the next episode, I'm going to help you graduate to novels. All right? We are going to talk about Indian authors, we're going to talk about foreign authors, we're going to talk about all those authors, and exclusively those authors who are time and again, whose pieces are used in exams, various competitive exams, whether CAT or CLAT or IPMAT and the likes. I've said it before also. प्लेज के बारे में आज के लिए इतना है. नेक्स्ट क्लास में, जैसा कि मैंने आपको बताया, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कुछ नॉवेल्स की. इसके साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ कंटेम्प्रेरी रीड्स भी दूंगा.
आपको ऐसे ऑथर्स, for example, if you're a CLAT aspirant, I'm going to talk about John Grisham. Have you heard the name? If you haven't, then now you've just heard his name. और इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें, हम जॉन ग्रिशम का नाम मैंने खासकर क्यों लिया, डिटेल में मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं जॉन ग्रिशम इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर अमेरिकन ऑथर्स. वर्ल्ड वाइड बेस्ट सेलर्स में है जॉन ग्रिशम. जॉन ग्रिशम ने 60, 70, 80 के दशक में खूब, सॉरी 70s, 80s एंड 90s, yes, for about 30 years he was highly active. More than half of the novels that he's written have been converted into films. And students, how is it related to CLAT is that John Grisham is popular for writing legal thrillers. Yes, जॉन ग्रिशम ने एक्सक्लूसिवली लीगल थ्रिलर्स, यानी कि कानून से संबंधित मसलों मसाइल पे और जो पचड़े होते हैं उन पर किताबें लिखी. ठीक इसी तरह रॉबिन कुक हैं, इज रिटन मेडिकल थ्रिलर्स, एंड देयर आर सो मेनी अदर authors, you know. So we're going to talk about these authors in detail, just glimpses of some of the we are going to be talking about. Students, that's about all for the plays. I would like to request you to subscribe to our channel, to continue watching us, and keep sharing, number one, your views, number two, your expectations with us. I said it in the beginning, I wind up by saying, आप लोगों को कहीं भी कुछ भी ऐसा है जिसकी आप लोगों को ज़रूरत महसूस होती है, हमें बताइए. हम पूरी तरह से आपके लिए वो चीज़ लेकर आएंगे, आपकी सहायता करने का पूरा प्रयास करेंगे. With hopes and wishes that all that we are doing for you is beneficial to the last minute of exam and helps you build a great career by reading this. I take your leave. See you until next time. Bye bye.